Hi Papa. Many congratulations for your retirement today. I'm really sad that I can't be there for you, and I had so many plans to celebrate it in a best way possible, but it's not happening anytime soon. So this is my way, and this is my gift to you. I hope you like it. Where do I start? So, Life Insurance Corporation of India is the biggest part of my life too. It's not just you. They say that the first 7 years of one's life are the foundation years, the childhood years of a baby. So for me, as far as I can remember, that's LIC colony for me, even for my sister. So it's like everything we have learned, everything we are living now is a reflection of those 7 years, what we have learned from you and what we have learned from the entire ecosystem. I remember mummy talking to aunties of how to inculcate a habit of learning in children. What should they cook for our tiffins? These are the littlest of discussions that I've heard throughout my life to make our lives better. Imagine a parent takes so much effort to make our lives better in the very simplest of their ways. So for me, that's the journey I could remember. And then if I talk about your dedication, your devotion, it's like you have, as Amit Bhaiya has said, sorry Bhaiya, I'm taking your lines here. So you have built a base for the divisional office. Technically, earlier before you, there were no, the people didn't have access to computer, and the people didn't have that kind of an innovation to begin that journey. But you have given them a platform. You have given them, it's kind of a legacy where someone is a pioneer and the others take from there. So I believe you have been that part of that office, that building. And I know that so many people would agree with me, and so many people have said that for you. You will see this in this video, and I am so overwhelmed with the response I've received from your friends and family. They love you so much. They are like fan of you. They think that you are such an integral part of their life, and I am so happy to see that. I must have cried like 30 times in those 30 videos I've watched, and it's a really long journey, so be prepared for it. Take water, take whatever you need, sit back and enjoy the journey. And this is my littlest efforts to make your day a little bit more beautiful. I know it's anything you are leaving behind is difficult, and you need to build yourself in a way that you have a new schedule now, but this thing is never going away. This part of our life is always there with us. We will cherish these memories regarding LIC, regarding your work, and you will see that so many people. To add to that, behind every successful man, there's a woman. But for me, I would say that behind every successful and a happy daughter is a father. So I remember when we were discussing our move to Australia in Gurgaon with you. We were sitting in Gurgaon and we were talking about the pros and cons of what's going to happen, and there were cons like we were leaving Sumit's job behind, which was a really big decision for us because it was a really good place to work, and he was really happy with that. But then again, since the thing which I felt was that I never felt alone in this decision. It was always 4 of us who were making this decision. It was like you were there to back us up. You said that if you want to do it, go for it. Because people get scared because they don't have that kind of support from their family sometimes. And I never felt like that in any decision I have made. I came to you with my relationship. Like I said that I like this guy and I want to get married to him one day. And you said, you have to give me time to understand whether he's good for you. And I know you took your time, and there was no rush ever for me to get married to any kind of marriage proposal. There was no rush. I was 26 when I got married, and I know that
I remember we never had this kind of a discussion in the house that it's getting late, you should get married and all that stuff. No, it was like our own, like it was like a club decision of all four of us that if we want to go for it or not. So it was like, but it's like every time I have done or I have decided to do something, you have always supported me, good or bad, and there are less amount of bad, so it's usually good. So I'm happy that it's you have been really like a strong pillar for me, that I don't need anyone else, any kind of support from anyone else, because I feel myself to be complete all the time, and that's what makes me confident in life. I feel like I am a complete human being who can make intellectual as well as personal decisions, all because you've taught me well. And I believe that that's what Chuttu feels too. And after getting married, after living like since 3 years, after living away from you, and it has never been a case like I felt like I'm alone or I can't do it, because it's like the teachings back you up. You have learned so well throughout your life that you feel confident to pursue anything coming forward, and that's the confidence I carry with me. That's why I proudly say myself that I am a Khemani, because the girls, Khemani girls, are really proud of their parents. And one more thing which I wanted to mention was that I never felt that your time is being divided. Like we always felt that you are there for us. We always felt that whenever we need you, even at night, if we need some kind of a map for next day at school, you would just get up and get going. Not even thinking about you have office tomorrow, you have other stuff tomorrow. So it's like balancing the work and your personal life that I have learned from you. I'm not sure if I'm following it right or wrong, but still learning. So these are the things, and I never saw any parent dropping and picking up a child from school every single day for 14 years. But for me, all of my friends know you because they've seen you coming in the morning, dropping us, and then picking us up in the evening. So you got to the school for 17 years. For me, it was just 14, because 3 adds up to 2 years too. So that's like a big thing for a dad. And thinking about like when they talk about balancing stuff, so you have managed everything so well and so beautifully that everyone at your workplace is happy and proud of you, and in the family everyone is proud of you. You are the little child who was born for Kishore uncle, for Kamla Bua. It's like you are the littlest of their child, like the eldest of their child, because they see you like that, and they are so happy to have seen this beautiful day coming. So a lot of talk from me. Let's get started with the video. I'll see you in the last. So okay, have fun. सबसे पहले तो एंटी बैक्टीरियल नमस्कार। आपको भारतीय जीवन बीमा निगम से सेवानिवृत्त होने की हार्दिक शुभकामनाएं। अभी ये वीडियो में आप देखेंगे, आगे बहुत सारे वीडियो हैं अभी, उसमें आप देखेंगे कि सब ने मतलब जोड़ियों में किया है कि भाई मतलब सब हस्बैंड वाइफ साथ में मिलके कर रहे हैं, पर मेरा थोड़ा सा अलग है, क्योंकि मैं चाहता था कि थोड़ा सा हिंदी में ज़्यादा एक्सप्रेशन आते हैं, तो मेरा हिंदी में आए, तो इस वजह से मैंने थोड़ा हटके किया। अभी आप देखोगे आगे वीडियोस में बहुत सारे। खैर, जैसे कि मैंने शुरुआत करी थी, भारतीय जीवन बीमा निगम से सेवानिवृत्त होने की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रोफेशनल फ्रंट पे तो आप आगे बहुत सारी चीज़ें देखेंगे जो लोगों ने आपके बारे में कही हैं, और बहुत ही अच्छी शुभकामनाएं, बहुत ही ज़्यादा प्यार और स्नेह के साथ में आपको मतलब सम्मानित किया भी है। इस बारे में मैं तो ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगा, क्योंकि प्रोफेशनल लाइफ में मेरा तो इतना कोई कनेक्शन रहा नहीं है, या ऐसा कुछ कनेक्शन रहा नहीं कि प्रोफेशनली फ्रंट से मैं आपको कुछ बता पाऊँ। बट पर्सनल फ्रंट पे देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि मुझे सीखने को मिली हैं
इन 3 सालों में कुछ ज़्यादा, और बाकी के पिछले 7 सालों में आपको पता नहीं था, आपने मुझे सिखा दी, क्योंकि ऐसे ही था कुछ रिलेशन। तो एक चीज़, बहुत सारी हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि एक वीडियो में मैं बता पाऊँगा उसको, या 2-4-5 मिनट में मैं उसको बयां कर दूँ। बट एक चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगी कि मतलब एक बहुत बड़ी क्वालिटी कि दूसरों पे विश्वास करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, जो आई थिंक आजकल की लाइफ में मिसिंग है। और उसमें मैं ये भी मतलब उसका एक एग्ज़ाम्पल ये भी हो सकता है कि जो हमारी शादी, जिस हिसाब से उस टाइम मैं क्या जॉब करता था और हम यहाँ पे आए ऑस्ट्रेलिया, और सब जॉब्स छोड़ के और देख के, और पता नहीं, मेरे को तो समझ नहीं आया आपने क्या देखा, बट कुछ देखा ही होगा। तो वो बहुत बड़ी एक चीज़ है अपने आप में, कि किसी पे विश्वास करना, उसका एक टाइप से प्रोत्साहन बढ़ाना कि वो आगे लाइफ में बढ़ सके, एक बहुत बड़े लीडर की निशानी होती है अपने आप में, जहाँ तक मैं समझता हूँ। अगेन लाइक ये मेरे काबिलियत से ऊपर है किसी को भी बताना, बट ये मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी चीज़ जो मुझे आपसे सीखने को मिली, और वो मेरी लाइफ में इम्प्लीमेंट भी हुई। जैसा कि जो भी आपका भरोसा था, जिस वजह से हम यहाँ पे आ पाए, और आगे मतलब एक एक्चुअली में ऐसा होता है लाइफ में कि आप अपने माँ बाप को छोड़ के एक लोगों के लिए लुकअप टू करते हो कि भाई देखो कुछ हो जाए तो ये लोग मेरे पीछे बैठे हैं। माँ बाप तो होते ही हैं, उसके बाद में कुछ रिलेशंस ऐसे बनते हैं जो आपको लगता है कि हाँ ये भी है मेरे साथ में, और ऑब्वियसली वो फैमिली फ्रंट से होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं अब ये कह सकता हूँ कि मेरे पास ऐसा नहीं है कि मेरे माँ बाप ही थे, मेरे पास 2 माँ बाप और हैं जो ऑब्वियसली मेरे सुख दुख में मेरे साथ खड़े हैं। और अब रिटायरमेंट, वैसे तो देखो 31 साल एक बहुत बड़ा अपने आप में एक टेन्योर, और बहुत मुश्किल होता है छोड़ना जगह को, स्पेशली आपकी उस सीट से जुड़ी यादें, उस बिल्डिंग से जुड़ी यादें, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। पर खुशी किस बात की होनी चाहिए? वो मेरे को तो इस बात की खुशी है क्योंकि 2 बार जब आप यहाँ पे आए और हम आपकी टिकट से एक्सटेंड कराना चाहते थे पर आपको जाना पड़ा, तो इस बात की खुशी है कि अब वो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से एक्सटेंड हो जाएंगी। और वैसे इसी ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में, इसी बात की शायद ज़्यादा खुशी है मेरे को। और मेन चीज़ ये है कि अब ये टाइम होता है जिसमें ऑब्वियसली मतलब आप जो भी आगे करना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ अपना पैशन परस्यू करना, हमारे साथ में रहना ऑब्वियसली वन है, वो परस्यू तभी कर पाओगे, और हमारे साथ में रहना ज़रूरी है उसके लिए बहुत ज़्यादा, तो वो तो आना ही आना है। और वो सब करना, तो वो उसके लिए आपको बहुत सारा टाइम अब मिलेगा, जिसमें आप जो भी आप करना चाहते हैं, जो भी आपकी इच्छा है वो आप कर सकते हैं। ऑब्वियसली यहीं आके बार बार मैं एम्फसाइज़ करूँगा इसी बात पे। तो ये मेन चीज़ है, इसी चीज़ को आगे कंटिन्यू करना है। और बाकी तो जैसा कि मैंने कहा कि आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं अपनी सेवाओं से निवृत्त होने के लिए। और मेरे पास क्या थोड़ा सा एडवांटेज था, जो वीडियोज़ आ रहे थे वो देखने का, और थोड़े रिटायरमेंट के वीडियोज़ मैंने और भी देखे हैं, बहुत शेरो शायरी सी चलती है, तो मैंने कहा चलो 2-4 पंक्ति मैं भी लिख देता हूँ। तो कुछ ऐसे हैं वो कि इन 31 सालों के दौरान की जर्नी है जिसमें बहुत कुछ बदलता है, मतलब देश काल और परिस्थितियों के अनुसार बहुत कुछ बदल जाता है। तो उस पर 4 लाइनें हैं कि कई अभिनेता बने बहुत नेता आए, कई अभिनेता बने बहुत नेता आए, बदली कई सरकार। कई अभिनेता बने बहुत नेता आए, बदली कई सरकार, पर तहे दिल से मुबारक हो आपको ये सम्मान भरे 31 साल। थैंक यू। अच्छा एक चीज़ और कि अभी आपको और वीडियो में आगे बहुत लंबा वीडियो है, तो आप
देखते रहना, और क्या है, बीच बीच में रुक के पानी आनी पीते रहना। फिर मिलते हैं अपन एंड। नमस्कार दिलीप जी और मेरा सफ़र 94 में अजमेर, दिलीप जी आए और 95 में मैंने LIC ज्वाइन करी। 95 से ही मैं दिलीप जी के साथ काम कर रहा हूँ और बहुत मज़ा आया उनके साथ काम करने में, क्योंकि उनकी थ्योरी अलग है। क्योंकि उनकी थ्योरी ये कहती है कि जो मुझे पता है, जो मुझे आता है, वो तुम्हें आना चाहिए। हर चीज़ सिखाते हैं, हर चीज़ सिखाते हैं। कंप्यूटर के अगर अपन फील्ड की बात कर रहे हैं तो उनकी नॉलेज एक्स्ट्रॉर्डनरी है, वास्ट है। कई सॉफ्टवेयर्स उनको आते हैं। पूरी अजमेर डिवीज़न के पायनियर कहूँगा मैं, क्योंकि मैंने उनके साथ काम किया है। तो एंटायर डिवीज़न, अजमेर डिवीज़न में पर्सनल कंप्यूटर अगर अपन बात कर रहे हैं, डेस्कटॉप कंप्यूटर की बात कर रहे हैं, तो वो मास्टर है। उससे पहले अजमेर डिवीज़न के अंदर पर्सनल कंप्यूटर्स कोई नहीं यूज़ करता था। फर्स्ट यूज़र, पायनियर ऑफ द अजमेर डिवीज़न ऑफ पर्सनल कंप्यूटर्स इज दिलीप खेमानी। वर्ड स्टार हो, वर्ड स्टार 4 हो, सॉफ्ट बेस हो, फॉक्स प्रो हो, माइक्रोसॉफ्ट के सारे सॉफ्टवेयर्स हों, ऑरेकल हो, SQL हो, हर तरह की नॉलेज उनके पास है और उन्होंने मुझे हर तरह से सिखाई है। कुछ भी कभी भी हिडन नहीं रखा। उनसे काम करने में, उनके साथ काम करने में घंटों बैठे रहते थे। हाँ, पद्मावती का फ़ोन जरूर आता था लंच के अंदर कि चलना नहीं है क्या, 1:30 बज गया। हम इतने मतलब 2-2 ढाई घंटे सिटिंग दे जाते थे और पता ही नहीं चलता था कि समय कैसे बीत जाता है, क्योंकि इतना ज़्यादा डेडिकेशन और इनोवेशन कि भाई ये इस तरह से काम हो रहा है तो उसके लिए अपन नया क्या कर सकते हैं, उसको कैसा इजी बना सकते हैं, या उसको डिजिटलाइज कैसे कर सकते हैं, कंप्यूटराइज कैसे कर सकते हैं, और उसमें कैसे कुछ नया इनोवेटिव पैदा कर सकते हैं। तो लगन से बैठे बैठे करते रहते थे। समय का पता ही नहीं चलता था, कब 5 बज जाते थे। तब भी भाभी को होना था, कह 5 बज के चलना नहीं क्या, तुम घड़ी, अरे 5 बज गए, अब कल करेंगे। लेकिन दिमाग में ऐसी रहती थी कि दिलीप जी के कि भाई आज ही निपटाएं। घर जाकर भी वो यही सोचते थे, फिर आके रमित मैंने ऐसा सोचा, ऐसा किया। मतलब बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड वर्कर है, बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान है, बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट है। काम के प्रति तो मैंने आपको बता ही दिया। साथ घूमे ज़िंदगी भर, पूरी लाइफ के अंदर, साथ ऑफिसों में कई तरह के टाइटल्स मिले हमें। कोई हमें भाई कहता था, कोई हमें दोस्त कहता था, कोई नंबर 1 जोड़ी कहता था, कोई स्मार्ट जोड़ी कहता था। लेकिन उनकी जो छाया थी उससे मेरी पर्सनैलिटी में डेवलपमेंट आया है और उन्होंने मुझे बहुत ही बेहतरीन सिखाया है। जितनी भी नॉलेज थी खूब उन्होंने मुझे अपना ज्ञान दिया है और अच्छा इंसान बनने के लिए प्रेरित किया है। बस इतना ही कहना चाहूँगा और सभी परिवार वालों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। स्पेशली अपूर्वा और सृष्टि, नितिन और सुमित को यही कहना चाहूँगा, यू आर लकी कि आपको ऐसे पापा मिले हैं। आप बहुत खुश नसीब हैं कि बहुत अच्छे इंसान हैं आपके पापा। थैंक यू वेरी मच। The age of superannuation, Comrade Khemani is retiring on 31st of May 2020 after serving Life Insurance Corporation of India with dedicated and meritorious service of more than 31 years. At this happy occasion, I wish him a very happy retired life filled with fun and happiness. I am wishing him the longest, most joyous retirement possible. Age-wise, Comrade Khemani is just like my son, yet our relationship rests on true comradeship. I have known him quite intimately. Simplicity, politeness, hard work, and integrity are the characteristics of his multi-dimensional personality. While on one hand, he, by dint of total commitment to his official duties, endeared himself to one and all, on the other, he earned encomiums and laurables for his unforgettable contribution in respect of the digitalization of the working of the LIC Staff Multipurpose Society. His uninterrupted service to the society for more than 2 decades is another fate to his credit. Quite often I used to approach him with one or more tasks. He accomplished the same with a smiling face and without any grudge. Having someone
like him as a comrade has been no less than a gift to me. I will certainly miss him but never forget. Regardless of his retirement, I will continue to trouble him. He has been equally alive to his responsibilities towards his family. He ensured good education to his two daughters, who, after their marriage, have migrated to Australia. His life's golden phase is about to start. May God bless him to fulfill all his personal aspirations through his retirement life, his dreams as much as he can. It is an old adage that retirement is not about giving up. Once the door to new opportunity. I can't go with him in his new endeavors, but my highest hopes for his future comrades. I hope you have nothing but happiness in your retired life. प्रिय साथी दिलीप, आज आपकी सेवानिवृत्ति ने स्वयं के लिए, परिवार के लिए तथा अपने इष्ट मित्रों के लिए बीती यादों का एक पिटारा सा खोल दिया है। बीते पलों का इतिहास चलचित्र की तरह आँखों के सामने घूम रहा है और ऐसी स्थिति को शब्द व्यक्त ही नहीं कर सकते हैं। शायद शब्द कम भी पड़ जाएं। अपने उत्कृष्ट कार्य, मिलनसार व्यवहार, शानदार व्यक्तित्व के धनी व सबका दिल जीतने वाले, साथ ही शानदार व यादगार सेवाओं के बाद निगम की सेवाओं से बेदाग सेवानिवृत्त हो रहे हैं। और आज के प्रतिस्पर्धा के युग में ये स्वयं दिलीप खेमानी के लिए और उसके परिवार के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। निश्चित रूप से आज का दिन पूरे परिवार के लिए तथा स्वयं साथी खेमानी के लिए गौरवशाली, भावुक तथा ना कभी भूलने वाला क्षण है। पति पत्नी की इस प्यारी व प्यार से भरपूर जोड़ी ने अपने सहभागियों के दिल में एक ऐसी अमिट छाप छोड़ी है जो शायद कभी न मिट सके। आज आप निगम की सेवाओं से मुक्त हो रहे हैं, लेकिन अपने दोस्तों के, अपने सहभागियों के दिलों में हमेशा अपनेपन के एहसास के साथ बने रहेंगे और यही आपकी सबसे बड़ी धरोहर है। व्यक्तिगत रूप से मैं साथी दिलीप का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मेरे कार्यकाल के दौरान कई ऐसे नाजुक मौके आए जहाँ मैं थोड़ा परेशानी में था, लेकिन इनका मुझे भरपूर सहयोग मिला। मैं इस सहयोग को हमेशा याद रखूँगा। तुम हमें नहीं बुला पाओगे, हम तुम्हें नहीं बुला पाएंगे, लेकिन ये अंतहीन रिश्तों की यात्रा जारी रहेगी। और विडंबना देखिए कि लॉकआउट भी अभी होना था और इस लॉकआउट के पीरियड में मिलना ही दुश्वार कर दिया है। सेवानिवृत्त होने वाले साथी से मुलाकात न होने पाई। सेवानिवृत्त होने वाले साथी से मुलाकात न होने पाई। दिल की बात दिल में रही और बात न होने पाई।
खुश रहो, स्वस्थ रहो, दीर्घायु हो और अपनी चिर परिचित मुस्कान के साथ ये शानदार जोड़ी सलामत रहे। पूरे परिवार को आप पर गर्व रहे, यही परमपिता परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है। अंत में मैं अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से आपको शुभकामनाओं के साथ साथ आपके लिए मैं एक बात कह रहा हूँ। हम जैसा शुभचिंतक अगर तलाश करो तो मिल ही जाएगा। हम जैसा शुभचिंतक अगर तलाश करो तो मिल ही जाएगा। मगर तुम्हारी तरह इस हद तक कौन हमको चाहेगा। चरेवती चलते रहो, अपनी मुस्कान बिखेरते रहो। चलते रहना ही हमारी नियति है। आप अपने परिवार के संग इस पूरे जहां की खुशबू बांटते रहो। मैं एक बार पुनः अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से आपकी दीर्घायु होने की और स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। आपका सेवानिवृत्त जीवन आपके परिवार के संग पूरा आनंदमय हो और खुशियों से लबरेज हो, यही मेरी प्रभु से प्रार्थना है। थैंक यू दिलीप, इतने वर्षों के साथ के लिए थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीवन, आज मुझे अप्पू का फ़ोन आया और आपके रिटायरमेंट सेरेमनी के लिए कुछ वर्चुअल सेलिब्रेशन कर रही होंगी, तो उसने वीडियो रिकॉर्डिंग करने को बोला था। लेकिन आज जैसे ही उसने कहा कि रिटायरमेंट के लिए, तो मुझे बोला अरे रिटायरमेंट तो आ गया है नज़दीक और 31 को रिटायर होगा, लेकिन विश्वास ही नहीं हो रहा है। आप दोनों ही इतने स्मार्ट, एनर्जेटिक, फिट पर्सनैलिटीज़ हो, तो लग ही नहीं रहा है कि आप रिटायर होने जा रहे हो 31 को। लेकिन हकीकत है कि रिटायरमेंट तो है 31 को। तो मैं आपको अभी लॉकडाउन की वजह से कोई ग्रैंड सेलिब्रेशन हो नहीं पा रहा है, हम इकट्ठे हो नहीं रहे हैं, और शायद बच्चे आपको वर्चुअल सेलिब्रेशन कुछ कर रहे हैं, कुछ अपनी तरफ से कुछ जो भी प्रयास हैं आपको खुशी पहुंचाने के वो कर रहे हैं। उसी में मैं आपके रिटायरमेंट के लिए समझ नहीं आ रहा है क्या कहूँ, लेकिन आपके साथ मैंने बहुत 94 से 2015 21 साल तक एज अ कोलिग काम किया है। पद्मा भी मेरे साथ ऑफिस में साथ रही है, हमारे घर जैसे रिलेशन रहे हैं, घर पे आना जाना मिलना करना रहा है। लेकिन जहाँ तक ऑफिस की काम की बात है, आप बहुत ही अपने काम के प्रति डेडिकेटेड हो, बहुत सिस्टमेटिक ढंग से काम करते हो और अपने वर्क प्लेस को, अपने ऑफिस में वर्क प्लेस को अपने घर से भी ज़्यादा, घर तो है ही व्यवस्थित, लेकिन उससे भी ज़्यादा नीट, क्लीन और सिस्टमेटिक रखते हो। यहाँ तक कि हम लोग भी जब आपके आईटी रूम में प्रवेश करते हैं तो ओवर कॉन्शियस से हो जाते हैं कि भाई वहाँ कुछ गड़बड़ ना हो जाए। स्पेशली कुछ जब चाय स्नैक्स कुछ साथ खाने हो तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता था। खैर, मुझे एक इंसिडेंट इस बारे में याद भी आता है कि मेरी फ्रेंड आई हुई थी और हम लोग वहाँ पर, क्योंकि आराम से बैठ के बातचीत हो सकती थी, तो हम आईटी रूम में ही बैठे थे, लंच का टाइम था और कुछ स्नैक्स हमने लिए थे। इतना ध्यान रखने के बावजूद जब करी ना ओवर कॉन्शियसनेस की बात, तो वो ही होता था कि मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ होती थी और वो गड़बड़ हुई उस दिन में, कुछ ना कुछ गिरा। हमारी इतनी सफाई कराने जाने पर भी हम लोग पकड़े गए आके उन्होंने, लेकिन उन्होंने बोला कोई बात नहीं, उन्होंने अपने तरीके से उसको मतलब सफाई वगैरह करवाई। लेकिन एक मतलब हमेशा से इतना ज़्यादा क्लीननेस और इतना ज़्यादा व्यवस्थित होता था कि हम लोगों को बहुत ही ध्यान, एकदम जहन में रखकर ध्यान रखना पड़ता था। अच्छी चीज़ है। साथ ही अपने काम को भी बहुत तरीके से करते थे हम लोगों को। सब भी ऑफिस में डिपार्टमेंट का आईटी वर्क से कुछ ना कुछ सपोर्ट चाहिए होता है,
आईटी सपोर्ट के बिना किसी का भी काम पूरा नहीं पड़ता है। मैं भी कैश काउंटर पर थी तो मेरी भी डीसीबी, अकाउंटिंग एंट्री और कैश काउंटर पे कुछ ना कुछ आए दिन गड़बड़ी होती रहती थी, गलतियाँ होती रहती थी, पर हमेशा उनके पास जाते थे और बड़े ही उससे वो आसानी से उसको ठीक कर देते थे। और जैसे मेरा तो मैं उनको जब वो ठीक करते हुए उनकी गलतियाँ देखती थी कि किस तरह से उसको ठीक करते हैं, तो मैं तो उनको कहने भी लगी थी आप वो स्क्रिप्ट लिख दो उस तरह से, तो वो गलती ठीक हो जाती है और उससे काफ़ी मेंटली रिलीफ मिलता था। तो वो काफ़ी हेल्पफुल थे, कोऑपरेट करते थे। साथ ही आईटी में इतनी एक्सपर्ट थे कि कोऑपरेटिव के, यूनियन के और दूसरे जो भी ऑफिस अदर देन ऑफिस जिसको भी अपने पर्सनली कोई काम के लिए भी अपने गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती थी तो वो हमेशा उनको देते थे और काफ़ी उसमें रिलैक्स करते थे। होमली टेक केयर करते थे, एल्डरली टेक केयर करते थे और पर्सनली भी हम कभी उनसे कोई भी अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करते थे तो हमें काफ़ी एक मेच्योरिटी गाइडलाइन और वो मिलता था जिससे हम मेंटली काफ़ी रिलीफ फील करते थे। तो उनके साथ शेयरिंग करना, सॉल्यूशन लेना, अच्छी बॉन्डिंग थी और वो बहुत उसको अच्छे से निभाते थे। और दोनों ही पद्मा और ये जिनसे भी वो इमोशनली अटैच्ड हैं उनका इसीलिए सर्कल बहुत बड़ा है। फ्रेंडशिप जो है वो उसको बहुत अच्छे तरीके से निभाते हैं और उन्होंने उसमें हमेशा मतलब आगे बढ़कर हम लोगों को उनकी हॉस्पिटलिटी की मैं तारीफ़ करूँगी। उन्होंने बहुत अच्छे से टेक केयर करते थे और बहुत ही मतलब वार्म वेलकम उनके द्वारा होता था। और इसमें कोई दो राय नहीं है, जो भी उनके साथ इमोशनली अटैच्ड है उनकी टेक केयर तो वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी, उनकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी। और अब मैं क्या बोलूँ, रिटायरमेंट करीब है तो आगे उनकी जो लाइफ है वो बहुत अच्छी, हैप्पी रहे, हेल्दी रहे, जॉयफुल लाइफ हो और फैमिली के साथ बहुत ऐसे खुश रहें, आनंदित रहें और ऑल द बेस्ट एंड गुड लक फॉर फ्यूचर। थैंक यू, बाय। हेलो अपूर्वा, हाय। मैं अपने आप को बेहद लक्की मानता हूँ कि मैंने आपके पापा मम्मी के साथ काम किया। बहुत अच्छे लोग मुझे मिले और फ्रेंकली बोलूँ तो पूरी सर्विस में ऐसे लोग मुझे बाद में कभी नहीं मिले। आपकी मम्मी और एक और मेरे साथी थे जो लक्ष्मण कोटाई जी, वो अभी नीमच में पोस्टेड है और हम तीनों एक शाखा में काम करते थे। पापा दूसरी शाखा में काम करते थे। बहुत अच्छा समय उनके साथ निकला। एक बार की बात है, मेरे एक भांजे का पत्र आया था, पोस्ट कार्ड था, तो वो ऐसे ही ओपन था तो उसको खोला नहीं और साथ में कोटाई जी बैठे थे, मम्मी भी एक तरफ बैठी थी, तो मैं पढ़ रहा था तो वो लोग भी ऐसी नज़र डाल रहे थे। तो उसमें लिखा प्रिय जीवन मामा और ऐसे लिखा हुआ था, तो बस उन्होंने पकड़ लिया और उसके बाद उन्होंने मुझे मामा कहना शुरू कर दिया। और मामा इतना फेमस हो गया कि मेरी पूरी जो सर्विस थी, मैंने लास्ट ईयर ही वीआरएस लिया था, तब तक वो मेरे साथ चलता रहा। बहुत अच्छा लगता था। आपके मम्मी पापा बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत केयरिंग, लविंग, हेल्पिंग नेचर के हैं। मम्मी बहुत सारे डिश बना के लाती थी, हमें खिलाती थी और फिर हम जहाँ काम करते थे हमारा कमरा ही इतना फेमस हो गया कि बस सारे दिन खाना पीना चलता रहता था। समय कब निकला, कैसे उस वक्त निकला, ये सन 1992 की बात है। बहुत बढ़िया निकला। काम भी हमको LIC का जब करते थे बिल्कुल ऐसा इजी करते थे, कुछ बोझ लगता ही नहीं। अजमेर आपके मम्मी पापा चले गए, उसके बाद तो इन 28-30 साल में तो 3-4 बार ही मिलना हुआ, लेकिन जब भी आता था मैं जरूर मम्मी पापा से मिलने की कोशिश करता था। आप अपूर्वा और आपकी बहन छुटकी दोनों बहुत लकी है कि इतने
लविंग, हेल्पिंग, केयरिंग आपको मम्मी पापा मिले। अब आपकी बहुत बड़ी ड्यूटी है उनको टेक केयर करने की, उनको खालीपन नहीं महसूस हो। उन्हें कभी ऑस्ट्रेलिया बुला लो, आप लोग भी कैसे भी करके साल में एक आध बार जरूर उनसे मिले जाओ ताकि उनको गैप ना लगे। मैं आपके पापा के और शायद अगले महीने मम्मी की जो रिटायरमेंट है उनको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। वो स्वस्थ रहे, अच्छे रहे, मस्त रहे, और मेरी कोई हेल्प हो तो मैं आपको हमेशा देने के लिए तैयार हूँ। विश यू ऑल द बेस्ट अपूर्वा। थैंक यू, बाय। Wish you a very happy retired life, Dilip. Welcome to the retired fraternity. It has been a very long association with you, starting in 1989, almost 32 years back, when you joined Udaipur 2 branch, and we had a very, very, very long, sweet standing relationship between you and my family. I still remember when you brought a little Appu in 1989 to our house, and I wish you a very good retired life. Thank you. हरिओम खेमानी जी, तव्हांजी अॼु ज़िंदगी जी ॿी पारी शुरू थियण वारी आहे। तव्हांजो स्वभाव ॾाढो सुठो आहे ऐं तव्हां बाय नेचर वेरी हेल्पफुल आहियो। तव्हां मूंखे काफ़ी सपोर्ट ऐं हेल्प कई आहे। तव्हांजी रिटायरमेंट खां पोइ तव्हांजी हयाती लंबी ऐं तंदुरुस्त रहे, हीअ मुंहिंजी दिली ख्वाहिश आहे। नमस्कार दिलीप जी। आज आखिर वो तारीख आएगी कि जब आप सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं। सेवानिवृत्ति ये एक सतत प्रक्रिया है। आज जो भी नौकरी में आया है उसके अपॉइंटमेंट लेटर में उसकी सेवानिवृत्ति की तारीख डाल दी जाती है। तो ये एक रूटीन प्रक्रिया है। मुझे आपके साथ 7 साल काम करने का मौका मिला। ये 7 साल मेरे सुनहरे 7 साल थे जो मैंने PNDS में निकाले। DP रूम की मुझे हमेशा याद आती है। जब भी मैं वहाँ आता था तो वहाँ का एक माहौल ही अलग होता था, एक ऑरा ही अलग होता था, एक पॉजिटिविटी रहती थी। वो हंसी के गुब्बारे, वो हंसी के फुहारे छूटते रहते थे। सुनो तो सरी से लेकर ये सब बाहर जो बैठे पेंशन ले रहे हैं, खाएं, मतलब एक एक क्षण बहुत हल्का होता था। क्या क्या याद करें। आपके साथ मैं ZTC चला, दिल्ली चला, वहाँ हमने खूब एंजॉय किया। 15 लाख का फूलदान मैंने जिंदगी में पहली बार देखा, शायद आखिरी बार 18 साल पहले। आपकी तबीयत वहाँ ठीक नहीं थी। रात को 2:30 बजे हम गुड़गांव की गलियों में डॉक्टर को ढूंढ रहे थे। चिंता हो पड़ी थी, लेकिन आप स्वस्थ हो गए और हमने काफ़ी एंजॉय किया उस लाइफ को भी। तो आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला, आपकी जो रहने की अदा। और आज भी ऐसा नहीं लगता कि आप सेवानिवृत्त हो रहे हैं। ऐसा लगता है कि अभी तो 10-15 साल अभी नौकरी कर सकते हैं। उम्र ही नहीं लगती है, पर ठीक है, हमारे जो कागजों में ये उम्र लिखी हुई है। और आप अपनी जो आपकी 2 बेटियां हैं उनका विवाह आपने किया और मुझे छोटे भाई की तरह आपने याद किया। आप जो मुझे आपने मान सम्मान दिया उसका मैं सदा कायल रहूँगा। आप पारिवारिक जिम्मेदारियों से लगभग मुक्त हो चुके हैं, लेकिन अब सामाजिक जिम्मेदारियां और जो भी जिम्मेदारियां वो आप उनका आप निर्वहन अच्छे से कर पाएंगे, यही मैं आपके लिए शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। और अंत में 4 लाइनें आपके लिए बोलूंगा कि आपके साथ बिताए गए उन दिनों की यादें सदा साथ रहेंगी। कि आपके साथ बिताए गए उन दिनों की यादें सदा साथ रहेंगी। ज्यादा दूर तो नहीं मगर दिल के आसपास रहेंगी। आप रहें सदा स्वस्थ, दीर्घायु, व्यस्त और मस्त। आप रहे सदा स्वस्थ, दीर्घायु, व्यस्त और मस्त। आपके लिए यही अरदास रहेगी। आपके लिए वाहिगुरु से यही अरदास रहेगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद। मिलते रहिएगा, दिल में बसाए रखिएगा। Hello, Khemani. How are you? In this month, your retirement? Wow, you are still looking so smart, young, and dashing personality.
यकीन ही नहीं हो रहा कि रिटायरमेंट है, हैं? वाह, हैप्पी रिटायरमेंट. आई स्पेशली विश फॉर यू a double dose of health and happiness topped with good fortune. Enjoy the rest of your life with loved ones and realizing dreams come true with pleasant surprises. Enjoy the best of your company with your family. Okay, bye bye. We are here in Bombay. हाँ, चलो. हाँ दिलीप, क्या हाल है? मालूम पड़ा अभी तुम्हारा रिटायरमेंट है. हम लोग तो बॉम्बे आ गए हैं, मिल नहीं सकते. हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं तुम दोनों को. हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे. खुशी हो या हो गम बदलेंगे ना हम, चाहे दुनिया में बदलती रहे. लव यू पद्मा. लव यू दिलीप. हैप्पी रिटायरमेंट. कीप स्माइलिंग. कीप हेल्दी. लव यू. दिलीप भाई को सेवानिवृत्ति की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ. ईश्वर करे आप हमेशा स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें. अरे यार, अभी पता चला तू रिटायर होने जा रहा है. You are still quite young. It looks that you are 40 years old now. चलो, very good. Now start your second inning. Have a very happy retired life. Enjoy. आना आपको फ्री हो गया. भाभी के साथ कभी 4-5 दिन मेरे पास, 4-5 दिन ऑस्ट्रेलिया, है ना? Okay. I wish you good luck for your happy retired life for the second inning. Thank you. दिलीप खेमानी साहब को 31/5/2020 को भारतीय जीवन बीमा निगम से सेवानिवृत्त होने पर अनेकानेक शुभकामनाएं एवं उनकी सेवाओं के लिए कोटि कोटि आभार. भारतीय जीवन बीमा निगम परिवार उनके सुखी, प्रसन्नचित, स्वस्थ एवं दीर्घायु जीवन की कामना करता है. अपनी अगली पारी में भी वे नई चुनौतियों पर जीत हासिल करेंगे, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है. धन्यवाद. दिलीप खेमानी जी रिटायर हो रहे हैं 31 मई को. इज इट गुड न्यूज़ और बैड न्यूज़? डेफिनेटली इट्स गुड न्यूज़ फॉर हिम, फॉर हिज फैमिली, because he has worked for more than 25 glorious years and he has touched new heights. But for me, it is not as good news because I only had the opportunity to work for only less than 2 years with him. So what I have learned from him, he is a wonderful person, he is very intelligent, he is very confident and he is very helpful. And most of the best thing in him is that he is full of energy, and that too positive energy. Whenever you approach him with any problem, maybe it's personal, it's professional, or it's something related to a new thing, he is always there to help you. And he'll, to describe him in a short way, I must say he is a one-point solution for all problems. You go him and he'll serve you in seconds. I wish him a healthy life after retirement, and I would request him to be in touch with him. Her wife Padma ma'am is also retiring on the 31st May. So I wish both of them a healthy and happy post-retirement life. And let me tell you one thing, both of them blend each other in a wonderful way, and they are still the most eligible wrestlers in LIC in Ajmer. Again, I wish all of them, both of them, best of luck. Thank you. नमस्कार मित्रों, मैं आपका पुराना साथी महेंद्र कुमार मुंदड़ा, वर्तमान में प्रशासनिक अधिकारी भारतीय जीवन बीमा निगम मंडल कार्यालय उदयपुर में कार्यरत हूँ. मुझे आज यह जानकारी मिली है कि मेरी पुरानी शाखा PNGS अजमेर से श्री दिलीप खेमानी जी निगम की सेवाओं से 30 मई 2020 को सेवानिवृत्त हो रहे हैं. श्री खेमानी जी एवं मैंने वर्ष 2009 से लेकर वर्ष 2016 तक लगातार 7 साल तक साथ साथ कार्य किया है. श्री खेमानी जी अपने कार्य के प्रति समर्पित प्रोग्रामर हैं. जिस प्रकार ये खुद अप टू डेट रहते हैं,
उसी प्रकार अपना कार्य भी हमेशा अप टू डेट रखते हैं। इनके कार्य की निरीक्षण रिपोर्ट हमेशा एक्सीलेंट आई है। इनको ओरेकल का एवं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का बहुत ही अच्छा ज्ञान है। अपनी पूरी सर्विस के दौरान श्री खेमानी जी अपने सिद्धांतों के प्रति हमेशा दृढ़ रहे हैं। मैं इनके सुखद भविष्य एवं स्वस्थ व मस्त सेवानिवृत्त जीवन की कामना करता हूं और इनके परिवारजनों को इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। हर दिल अजीज खेमानी जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो। आप रिटायर हो रहे हैं, पर आप रिटायरमेंट की एज में बिल्कुल नहीं लगते हो, क्योंकि जैसे यंग आप LIC में आए थे वैसे ही यंग अभी लग रहे हो। परंतु 31 साल आपने अच्छी तरह से जॉब करी। हम आपको यही दुआ करते हैं कि आप दीर्घायु रहो, स्वस्थ रहो, अपने बच्चों के साथ खुशियां मनाओ। आप हालांकि कॉलोनी में काफ़ी साल अपन साथ रहे, परंतु चूंकि आप अपने मकान में गए तो खुशी भी हुई, पर दुख हो रहा था कि कॉलोनी छोड़ के गए। परंतु ऑफिस में साथ थे तो ये एहसास ही नहीं हुआ कि अपन अलग अलग रहते हैं। तो मैं आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करती हूँ। सजती रहे खुशियों की महफिल, हर खुशी इतनी सुहानी रहे, आप ज़िंदगी में इतने खुश रहें कि हर खुशी आपकी दीवानी रहे। मैं आपको इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। खेमानी जी, बहुत बहुत बधाइयाँ। आपने 31 साल सफलतापूर्वक LIC में निकाल दिए। आपके याद में कुछ पंक्तियाँ मैं कुछ बोल रहा हूँ। आपसे हौसलों को हवा मिल गई। आपसे हौसलों को हवा मिल गई, बेइलाजों को जैसे दवा मिल गई। आपकी सोहबत हमको ऐसी लगी जैसे ख्वाबों को सच्ची दुआ मिल गई। गॉड ब्लेस यू। हमेशा खुश रहो, इसी तरह से लंबी उम्र भी हो आपकी और ऐसे ही जवान बने रहो और हमसे मिलने के लिए ज़रूर आइए। ओके, गॉड ब्लेस यू। बाय। हमारी शाखा में कार्यरत श्री दिलीप खेमानी जी का रिटायरमेंट 30 मई को है, क्योंकि देश में लॉकडाउन होने की वजह से हम ये विदाई समारोह सामान्य रूप से नहीं कर पाने की वजह से मैं दिलीप खेमानी जी के लिए 2 शब्द कहना चाहूँगा। श्री दिलीप खेमानी जी हमारी शाखा कार्यालय के एक बहुत ही महत्वपूर्ण कर्मचारी रहे हैं। क्योंकि ये प्रोग्रामर हैं तो इनका शाखा कार्यालय के प्रति जिम्मेदारी बहुत ही ज़्यादा थी और काफ़ी लंबे समय से ये PNGS में कर रहे थे। तो इनको PNGS के काम के बारे में बहुत ही अच्छी तरह से नॉलेज है और इन्होंने शाखा कार्यालय में जो भी आज स्कीम्स हैं, सारी की सारी मैकेनाइज्ड स्कीम है, वो इनकी बहुत ही कड़ी मेहनत की वजह से सारी स्कीम मैकेनाइज्ड। आज जो भी काम होता है मैन्युअली कुछ भी नहीं हो रहा है। इनका स्वभाव बहुत ही मिलनसार है। इन्होंने समय समय पर हर कर्मचारी को जो भी दिक्कतें आई है, इन्होंने उनकी दिक्कतों को दूर करने में हेल्प प्रदान करी है और शाखा कार्यालय का काम सुचारू रूप से चले, इसके लिए हर किसी को सहायता या हेल्प करते हैं। इनका स्वभाव मिलनसार है और मेरा भी इनके साथ बहुत ही काफ़ी टाइम से मैं PNGS में दिलीप खेमानी जी के साथ काम कर रहा हूँ और इनसे बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी PNGS से संबंधित काम इनसे सीखा है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि इनके रिटायरमेंट के बाद शाखा कार्यालय PNGS में एक बहुत ही बड़ा वैक्यूम आ जाएगा। इसको भरपाई करने में काफ़ी समय लग जाएगा। मैं दिलीप खेमानी जी के लिए रिटायरमेंट के बाद मैं इनको शुभकामनाएं देता हूँ। इनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, ये मस्त रहें, स्वस्थ रहें और समय समय पर जब भी इनको याद आए तो शाखा में आए या डिवीज़न में आए तो मिले, बात करते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ दिलीप जी नमस्कार। आज आप LIC की सेवाओं से रिटायर हो रहे हैं। वैसे तो हम एक ही ऑफिस में हैं, एक ही शहर में, लेकिन इस पैंडेमिक सिचुएशन में वीडियो के माध्यम से आपको शुभकामनाएं प्रेषित कर रहे हैं। हमारा और आपका एसोसिएशन
बरसों पुराना है। उदयपुर में 1-2 मुलाकात के बाद ब्यावर में हम साथ रहे, उसके बाद 20 वर्ष इस मंडल कार्यालय में साथ। आपके साथ बातचीत करना, वार्तालाप करना, अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करना बहुत अच्छा लगता है। और इस अवसर पर मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि चूँकि मेरे ब्रदर का नाम भी दिलीप, आपका भी दिलीप, हमने हमेशा आपको एज ए ब्रदर ट्रीट किया है और सेम उसी तरह आपने भी हमें कभी एज ए कलीग ट्रीट नहीं किया। आपने भी हमें छोटे भाई की तरह ही माना है, हमेशा हमें सही मार्गदर्शन दिया आपने। इस अवसर पर बस मैं यही कहना चाहूँगा कि आपकी रिटायर्ड लाइफ सुखमयी हो, दीर्घायु रहें, आप खुश रहें। थैंक यू। प्रिय दिलीप जी, पद्मा मैडम एवं परिवार के सभी सदस्यों को मेरा हार्दिक अभिवादन, नमस्कार। पूर्ण सेवाकाल के बाद में सेवानिवृत्ति किसी भी नौकरी पेशा के जीवन का एक अद्भुत एवं विलक्षण अवसर होता है। इस अवसर पर मैं आपको हार्दिक बधाइयाँ और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और मुझे खुशी है कि इस अवसर पर मैं आपका सहभागी हूं। एक सहयोगी के रूप में आपका साथ सुखद अनुभूतियों के साथ मुझे सदैव याद रहेगा। रिटायरमेंट के बाद की लाइफ के लिए आपको उत्तम स्वास्थ्य, प्रसन्नता एवं खुशियों से परिपूर्ण उद्देश्यपूर्ण जीवन की शुभकामनाएं मैं प्रेषित करता हूं। गुड लक, थैंक यू। साथियों, जैसा कि आप सबको विदित है कि आज दिनांक 30/6/2020 को हमारे हसमुख व्यक्तित्व वाले श्री दिलीप खेमानी जी का सेवानिवृत्ति समारोह मनाया जा रहा है। खेमानी जी के इस सेवानिवृत्ति के अवसर पर मैं उन्हें बहुत शुभकामनाएं देता हूं और खेमानी जी के साथ मेरा अधिकतर समय कोऑपरेटिव सोसाइटी में बीता। मैं उनके साथ 1997 से जुड़ा रहा कोऑपरेटिव में। उन्होंने मुझे बहुत सिखाया। जब भी मैं कोऑपरेटिव में काम करता था तो इस निश्चय के साथ करता था कि कोई गलती होगी तो खेमानी जी सुधार लेंगे। कि खेमानी जी कोऑपरेटिव सोसाइटी में की पर्सन की तरह हैं। इन्होंने जब भी कोई सोसाइटी में हमसे कोई गलतियाँ हुई उसको सुधारा और आज कोऑपरेटिव सोसाइटी को इस मुकाम पर ले गए। कोऑपरेटिव सोसाइटी में अधिकतर कई व्यक्तियों के साथ मैंने काम किया, लेकिन खेमानी जी का जो साथ मिला वो अविस्मरणीय रहेगा। मैं ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। वे सेवानिवृत्त हो रहे हैं, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी में जब भी हमें ज़रूरत पड़े तो हमें मार्गनिर्देशन देते रहें। इसी आशा के साथ मैं उनको दीर्घायु की कामना करता हूँ। धन्यवाद। मैं इन पंक्तियों के साथ अपने उद्घोष को विराम दूंगा। ना जाने क्यों एक एहसास है, दूर होकर भी आप हमारे साथ हैं। आपको शायद ना हो लेकिन हमें आपका हर पल एहसास है। धन्यवाद। आदरणीय दिलीप जी भाई साहब, आपको LIC से रिटायरमेंट की बहुत बहुत बधाइयाँ इसलिए कि ताकि आप अब निर्बाध रूप से अपने टैलेंट को समाज और अपने परिवार के प्रति प्रेषित कर सकें। आपका और मेरा लगभग पिछले 25 वर्ष से संपर्क है और इन 25 वर्षों में मैंने अनुभव किया कि आपने मुझे एक बड़े भाई और गुरु की तरह हमेशा ही सद्मार्ग पे प्रेरित किया। जहाँ जहाँ भी मैं परेशानियाँ मुश्किल में आया, आपने मुझे दिशा दी, राय दी और मैं सफल हुआ। मुझे उम्मीद है आप भविष्य में भी मुझे इसी तरीके से मार्ग प्रेषित करते रहेंगे। इन 25 वर्षों में मेरे से त्रुटि अवश्य हुई होगी, ये मैं मानता हूँ और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इन त्रुटियों को आप मुझे अपना छोटा भाई मानते हुए क्षमा कर देंगे, भूल जाएंगे। भविष्य में मैं आपको ये पूर्ण विश्वास दिलाना चाहता हूँ, जब कभी भी इस छोटे भाई की आपको आवश्यकता हो किसी भी प्रकार से, तो मैं सदैव आपके लिए सेवा प्रेषित करने के लिए तत्पर रहूँगा। अभी मैं वर्तमान में यही कहूँगा
कि आपको आपकी रिटायरमेंट लाइफ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी रिटायर्ड लाइफ। थैंक यू। हेलो, हाय दिलीप भैया, नहीं दिल भैया, अरे राम भैया और पद्मा भाभी, जिन्हें मैं सीता भाभी कहता हूँ। क्योंकि हमको रामायण के किरदार में मुझे लक्ष्मण कहा जाता है इनके साथ, और ये मेरे राम भैया हैं, दिलीप भैया। आज 31 मई 2020 दिल भैया का रिटायरमेंट है, और बहुत ही खुशी का दिन है कि कोरोना की वजह से हम लोग जश्न नहीं मना पा रहे हैं, लेकिन हमने जनवरी में ही तय कर लिया था एक धूमधाम से जश्न मनाएंगे दिलीप भैया के रिटायरमेंट पे। कोई बात नहीं, जश्न दिल में मन रहा है, और जब भी मौका मिलेगा जश्न ज़रूर मनाएंगे। दिलीप भैया और हमारा रिश्ता बहुत लगभग 30 साल पुराना, हम बचपन से ही एक तरह से मैं इनको जानता हूँ, और इनका व्यवहार बहुत ही मस्त, दिल बहुत ही सुंदर, और सबका भला चाहने वाले हैं, सभी का भला चाहते हैं। सीता भाभी यानी पद्मा भाभी भी हमारे साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार रखते हैं, मेलजोल है। और जो रिटायरमेंट है ये LIC की सर्विसेज से रिटायर हो रहे हैं, लेकिन खैर दिलों में तो सबके इन्होंने राज किया है और राज करते रहेंगे। अब बस केवल ये हुआ है कि अब ये मर्ज़ी से अपने आ जा सकेंगे। अब ऑफिस के बंधन से इनको छूट मिली है, ऑफिस आने जाने से इन्हें छूट मिली है, केवल अभी कभी भी कहीं भी किसी भी समय आ जा सकते हैं। हम इन्हें याद करेंगे, ये फ़ौरन हमारे पास में आएंगे, और यही है कि इनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, दीर्घायु हों, मस्त रहें। जिस तरह से अभी तक इन्होंने हमें प्यार मोहब्बत दी है, वैसे सभी को प्यार मोहब्बत देते रहें, बस यही कामना है। और जल्दी हम कोरोना का जैसे ही छटेगा बादल, हम जश्न भी मनाएंगे इनके रिटायरमेंट का। मैं बहुत बहुत दुआएं करता हूँ मेरे राम भैया और सीता भाभी। दिल भैया, मैं हमेशा इनको दिल के नाम से ही पुकारता हूँ, क्योंकि इन्होंने हमेशा हमें जो मोहब्बत दी वो दिल से दी है, दिमाग से नहीं। इसलिए मैं इनका बहुत बहुत आभारी रहूँगा सदैव। और अमित, मैं और दिल भैया, हम तीनों का त्रिमूर्ति की तरह हम रहते थे। PNGS में मैंने पहले भी काम किया हुआ है, और वापस से फिर मैं PNGS में आया हूँ इनके साथ। मैं इन्हें बहुत प्यार करता हूँ, इनका सम्मान करता हूँ, और दुआ करता हूँ कि मस्त रहें, खुश रहें, आबाद रहें। और जो इनकी बच्चियाँ हैं अप्पू और छवि, उनके परिवारों के लिए भी मैं बहुत बहुत दुआएं करता हूँ कि वे स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और बहुत बहुत उन सबको प्यार। एक बार फिर इस रिटायरमेंट के अवसर पर मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ दिलीप भैया को। नमस्कार। Hi Dilip Padma. Hi Dilip Padma, how are you? Retirement is just end of the job, but not life. It's good that you both are retiring almost together. So never let that spark die in you, which keeps you both vibrant, lively, cheerful and lovable. 25 साल पहले अजमेर यूनिट की सारी यादें ताज़ा हो गई। वो IT में पद्मा के साथ गप्पे मारना, ब्लैक टी पीना, अपने दोस्त पर उसको हंसाना, और फिर सोचना कि ऑफिस तो काम के लिए आए थे, चलो थोड़ा काम भी कर लेते हैं। LIC फ्लैट्स में गुंजन वर्तिका को लेके आना, और लंच में पद्मा के साथ उन फ्लैट्स में जाकर खूब हल्ला मचाना और बच्चों की लेग पुलिंग करना, सब याद है। यार ये पल कैसे गुजर गए पता ही नहीं चला। लेकिन मानना पड़ेगा, आज भी दिलीप और पद्मा वैसे ही हैं जैसा मैं उनको 25 साल पहले छोड़ के आई थी। हमारी बॉलीवुड हीरोइन दीपिका पादुकोण से कम नहीं है हमारी पद्मा, और रणवीर सिंह से कम नहीं है हमारा दिलीप। आज भी दोनों मात देते हैं। सोचा तो यह था कि पद्मा और दिलीप के रिटायरमेंट पे यह कहेंगे कि अधिक से अधिक संख्या में आकर इस कार्यक्रम को सफल बनाएं, पर पता नहीं अब यह शब्द
कब सुनाई पड़ेंगे। इस लॉकडाउन में एक शेर अर्ज किया है खास आपके लिए। थमती नहीं जिंदगी किसी के बिना, मगर यह गुजरती भी नहीं अपनों के बिना। सबको बहुत मिस कर रहे हैं। ऑफिस का टाइम, घर पे बिताए वो पल, फैमिली टाइम टुगेदर, एक एक पल है ना, जैसे ना लाइव जैसे स्क्रीन पे आ गया है। एक मूवी बना सकते हैं हम तो अपने ऊपर। अब एक शेर देव अर्ज कर रहा है। देखो, मैं तो हूँ यारों का यार, है ना। देव को लोग जानते हैं यारी, मोहब्बत, सच्चाई। उसमें मैं केवल एक दो शेर सुनाऊंगा कि सलामत रहे हमारा अजमेर, सलामत रहे हमारा अजमेर, जिसमें तुम बसते हो मेरे दोस्तों। हम तुम्हारी खातिर चंडीगढ़ से पूरे अजमेर को दुआ देते हैं, पूरे अजमेर को दुआ देते हैं कि मेरे यार वहाँ रहते हैं, मेरे दोस्त वहाँ रहते हैं, मेरे पद्मा और दिलीप वहाँ रहते हैं। चलो, जीवन का हर पल आपके और आपके परिवार के लिए शुभ हो। ढेर सारी खुशियों के साथ दुआ करते हैं कि जल्दी मिले और फिर धमाल करें। दिलीप जी नमस्कार, मैं आपका छोटा भाई वीरेंद्र यादव। सर, आपके साथ काम करने का एक अनुभव बहुत ही शानदार रहा और आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला। एक तो आपके चेहरे की मुस्कान जो सदा ही रहती है, और मैं सभी के लिए यही कहूँगा कि आप 31 मई को रिटायर्ड हो जाएंगे तो एक कम से मुझे तो एक व्यक्तिगत क्षति रहेगी आपकी। और आपने जो कोऑपरेटिव में जो कार्य किया है बेहद सराहनीय है। मतलब इस कमी को पूरी करने में मेरे को लगता है कि काफ़ी समय लग जाएगा। जो आपने वहाँ कंप्यूटर में बैठ के जो सारी चीज़ें आपने गेन करके उनको इम्प्लीमेंट करा, समय पे स्टेटमेंट देना, समय पे लोन का शेड्यूल बनना, और अकाउंट्स में इधर एप्लीकेशन दे, मतलब ऐसा तो मैंने देखा नहीं कोऑपरेटिव में कितनी जल्दी मतलब जाओ 5 मिनट में तो लोन ही मिल जाता। तो एक स्माइल लेके निकलना कोऑपरेटिव सोसाइटी के चैम्बर से, वो आपके साथ आपकी वजह से संभव हो पा रहा था। और पीएनजीएस का तो कहना ही क्या कि आप आ जाते पता नहीं चलता कब आए। हमें तो जब काम पड़ता है आपसे, जब हम कंप्यूटर पे काम करते करते अटकते हैं तब याद आती है यार दिलीप जी से मिलो यार। तो दिलीप जी आपके लिए शब्द नहीं है। और आप सबसे बड़ी बात तो देखो ना, अभी लगते ही नहीं, ऐसा लगता है कि अभी 10-15 साल की सर्विस हुई है आपकी, तो लग ही नहीं रहा कहीं से कि आप रिटायर्ड होने जा रहे हैं। और मैं तो पुनः यही कहूँगा, आपको शुभकामनाएं दूंगा, आप और आपका परिवार स्वस्थ रहे। और अगर हमें कभी काम हुआ तो हम आपको याद करें तो जरूर। धन्यवाद दिलीप जी। दिलीप खेमानी जी को सेवानिवृत्ति की बहुत बहुत बधाइयाँ। क्योंकि इस समय पूरा विश्व कोरोना महामारी से ग्रसित है, इसलिए हम आपका सेलिब्रेशन अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। और आपका रिटायरमेंट की लाइफ आपकी और पद्मा खेमानी की स्वस्थ और हमेशा सलामती बनी रहे, और आपके साथ बिताए हुए लम्हे हमेशा याद रहेंगे। आप LIC से रिटायर हो रहे हैं, हमारे दिल से रिटायर नहीं हो रहे। पुनः एक बार आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। विश यू ऑल द बेस्ट। Congratulations! We love you! Hi! Congratulations! I am so happy. अभी बस इतना करना है कि हमें भाग के फटाफट हमारे पास आ जाना है यहाँ ऑस्ट्रेलिया में, ताकि हम साथ में रहें। एंड ऑसम वर्क, सब कुछ अच्छे से हो गया। आई एम रियली ग्लैड एंड आई जस्ट वांट टू से कि LIC has been such a big part of our lives. बचपन से, मैं तो 13 साल की थी जब तक I was living in the colony LIC है सामने. So I just feel so connected with everyone that I've met in this journey and everyone that who has helped me through it. क्योंकि मुझे CA में इतने लोगों ने support किया who I knew because of your work, and I just feel कि LIC has given us back so much more than we took from it. So that's just great, and these relationships will always live with us. And I just want to wish you congratulations and just want to meet you as soon as possible. Mwah! Congratulations, Mr. Khemani, on your successful completion of excellent dottless earning with LIC of India. On this occasion, we wish you life full of happiness, good health, harmony, and success in everything to you.
Wishing you all the best for coming years. Thank you. Thank you. दिलीप बेटा, मेरा आशीर्वाद है तुम्हारा, हमेशा सदा खुश रहना और अमीज का ध्यान रखना। हेलो ताऊजी, वी लव यू। कंग्रेट्स ताऊजी, कीप ब्लेसिंग्स ऑन अस। भाई साहब, भाभी जी को बहुत बहुत बधाई। और भाई साहब का पूरा समय भाभी जी के लिए और थोड़ा सा समय हमारे लिए होना चाहिए। दिलीप जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, पूरे परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं, मेरे परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि आज बहुत ही सुनहरा दिन है उनके जीवन का। और ज़्यादा तो क्या कहूँ, मेरे पास बहुत कुछ है कहने के लिए उनके लिए, क्योंकि इतना सारा उनसे सीखा है, इतना ज़्यादा समझा है। और पता नहीं ऊपर वाले ने मेरी झोली में इतना प्यारा भाई कहाँ से दे दिया। मैं तो ऊपर वाले का खुद शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि जिस चीज़ की कमी थी मेरे पास वो अचानक से LIC में आने के बाद मुझे मिल गई है। तो ऊपर वाले का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। मुझे आपने बहुत कुछ सिखाया है, खूब आशीर्वाद रखा है, ढेर सारा प्यार दिया है, उसको कंटिन्यू रखना और ऐसे ही आशीर्वाद बनाए रखना। थैंक यू वेरी मच। अगले पक्के मजे में हैप्पी रिटायरमेंट भाई। तो फिर रिटायरमेंट को लख लख बधायूं। पंहिंजे वर घर समेत खुश हुजे। छोकिरियूं ऑस्ट्रेलिया में आहिनि न, उहे वेंदियूं रिटायरमेंट से, या तव्हां वेंदव वञिजो त ॿुधाइजो। फोन वोन कंदा कयो, फोन कयो ई कोन था छो। खुश हुजो हमेशा। लख लख वाधायूं। खुश रहो, मज़े में रहो, पंहिंजे ॿारनि बच्चनि समेत खुश रहो। हाँ, दिलीप रिटायर हो रहा है, सकुशल खुशी की बात है। 60 साल की लाइफ बच्चे आराम से निकाल ली। और मेरे को उसके बचपन के कुछ दिन याद है, वो ताज़ा करता हूँ। जब दिलीप भाई हुए थे छोटे छोटे, तो शायद दिसंबर का महीना था। तो छोटे बच्चों को क्या मालिश करते हैं ना, पहले दादी करती थी, बाद में अम्मा करती थी। तो जनवरी का महीना था, तो मोती गड्ढा में रहते थे ना, तो वो अंदर जो आंगन में धूप आती थी, तो अम्मा मालिश करके और मैं ऐसे पलटी मार के बैठता था और मेरी गोद में बैठा जाती। ये दिन मुझे याद है। फिर जब थोड़ा बड़ा हो गया, 2-2.5 साल का, तो मीना हो गई। मीना हुआ तो अम्मा हॉस्पिटल चली गई। अब दिलीप भाई रात को उठते और अम्मा अम्मा करते, ऐसे चिल्लाते लाते, ऐसे ही मारते, किसी के संभले नहीं संभलते। फिर बाबा अपनी विष्णु बुआ को उठाते, उठ बहन उठ भाई उठ। फिर टांगा करके आते मोती गड्ढा में, टांगा करने जाते, टांगे वाले को लेके आते, मोती गड्ढा गेट के बाहर खड़ा करते, जो भी पैसे लेता। रात को 1:30 बजे टांगा कहाँ मिले, 2 बजे। फिर विष्णु बुआ और बाबा दिलीप भाई को जबरदस्ती गोदी पकड़ के ले जाते अम्मा के पास। अम्मा के पास थोड़ी देर बैठाते, मिलाते, फिर अम्मा समझाती, जा बेटा तबियत ठीक नहीं है, तेरी बहन आई है, ये है, वो जैसे जैसे फटाफट उठ के दिलीप बाबा अपने घर भेज देते। ये 3-4-5 दिन ये मुझे याद है अच्छी। रात को कभी 1 बजे, कभी 1:30 बजे, कभी 2 बजे, ऐसा तो लाते मारते जो संभलते नहीं थे। ये मुझे याद है बस ना, और क्या। चांद को पाने की ख्वाहिश रखते हैं, सूरज को पाने की ख्वाहिश रखते हैं, पर सबसे पहले परिवार को खुश रखने की ख्वाहिश रखते हैं। आज की पावन वेला में 109 ग्रह सौर परिवार के सबसे छोटे भाई, जो हमारे प्यारे लाडले कमल की तरह मुस्कुराने वाली भाई की वह शुभ घड़ी आएगी। शुभ घड़ी वह है क्योंकि हर राजकीय कर्मचारी को इस दौर से गुजरना पड़ता है। 60 वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर कानून कायदों के मद्देनज़र रखते हुए राजकीय सेवा को अलविदा कहना ही पड़ता है। हर व्यक्ति की लाइफ में उतार चढ़ाव आते हैं, वैसे भी दिलीप की लाइफ में भी वैसे ही और उतार चढ़ाव परेशानियाँ आई, परंतु इन्होंने उतार चढ़ाव और परेशानियों को इतनी आसानी और सरलता के सहजता से क्लियर कर दिया, सामने वालों को पता भी नहीं चला। हमारे परिवार में भी कई प्रॉब्लम्स आई, यानी कि मेरी फैमिली में भी कई प्रॉब्लम्स आई। छोटे होते हुए भी हमारे लिए ये हमेशा एडवाइज़र की तरह खड़े रहे। हमारी फैमिली की बेस्ट विशेष यही रही है, ये जहाँ भी रहें खुश रहें, मस्त रहें, आज़ाद रहें, शाद रहें, आबाद रहें, हमको हरदम याद रहें। और
आज मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि विदाई की घड़ियाँ प्रेम की गहराई को माप रही है, क्योंकि इंसान गलतियों का पुतला होता है। भूल करना मनुष्य का स्वभाव है, उसे स्वीकार करना, फिर न करने का प्रयास करना मनुष्य का कर्तव्य है। ये इनकी लाइफ स्टाइल है। और LIC की सुंदर बगिया में खिलने वाली यह जोड़ी गौर ने शायद ये फुर्सत में ही बनाई है, और इन दोनों को मैं हमेशा तहे दिल से शुभकामनाएं देती हूँ। और दोनों हर किसी को अपने से जोड़ने का प्रयास ही करते हैं, अपनों से और अपनों को अपनों से, दूसरों को भी अपनों से जोड़ने का हमेशा ही प्रयास करते आए हैं। और हर पल हमारे साथ साए की तरह साथ रहते हैं। गॉड उनको लाइफ में खुशियाँ देते रहें और उनको किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं आए। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद कोई ऐसा व्यक्ति LIC का होगा जिन्हें इन दोनों से कोई गिला या शिकवा होगी। मुझे ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। मैं इनके बारे में 2 पंक्तियाँ बोलना पसंद करूँगी। दोनों के प्यार में वो शक्ति है, वही दर्पण को साफ करती है। दोनों ने बीज जो उगाए हैं, एक दिन उससे फल निकलते हैं। दोनों के ज्ञान में वो शक्ति है, वही दर्पण को साफ करते हैं। दोनों के प्यार में वो शक्ति है, वही दर्पण को साफ करते हैं। दोनों ने बीज जो उगाए हैं, एक दिन उससे फल निकलते हैं। इसी के साथ शब्दों को विराम। जय दिलीप पद्म। नमस्कार, मैं अपने भाई दिलीप के बारे में एक बात बचपन की कहना चाहती हूँ। जब वो छोटा था, मैं उसे लेकर बाहर घूमने गई थी तो हम दोनों गिर गए और उसके बाद वो मेरी गोदी में कभी आया ही नहीं। वो बचपन से बहुत होशियार और समझदार था और आज भी है, और ऐसा मेरा भाई है। मैं भगवान से ये धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि ऐसा बेटा, ऐसा भाई, ऐसा पति और ऐसा पिता हर किसी को नहीं मिलता। भाई तुम जियो हजारों साल। Hey bro, congratulations on your retirement. Have a happy retirement and a happy future ahead. Hello everyone, I am Dharmesh. Congratulations, Didi and Jiju both. रिटायर हो रहे हो, कैसा लग रहा? जीजू को तो पसंद ही मैंने किया। बहुत ही केयरिंग पर्सन, बच्चों के लिए, अपनों के लिए। मुझे तो जब भी कोई काम हो, दुख सुख हो, पहला फ़ोन जीजू को ही जाता और वहाँ से सॉल्यूशन आ भी जाता है। इवन मेरी बच्चों की किस स्कूल में डालना है, कैसी एजुकेशन देनी है, सब जीजू से पूछ के ही करता हूँ और जीजू को सब आता है। जीजू को सब पता होता है कि क्या करना है। बहुत ही केयरिंग पर्सन। दीदी पद्दू की नौकरी लगी थी राजसबंद कांकरोली, बहुत जाया करता था। जब भी स्कूल से छुट्टी हुई सीधा पद्दू के पास। शादी के बाद उदयपुर, जब भी स्कूल की छुट्टी हुई सीधा बस पकड़ा उदयपुर। 5-7 दिन रह के ही आते थे। और आज भी दिन में एक बार बात हो ही जाती है।
कोई दिन ऐसा नहीं निकलता कि दीदी से बात नहीं हो। दोनों ही मेरे लिए खास हैं, दोनों। रिटायर होके खूब मस्ती करें। Hi Jiju, happy retirement. It's true, you are your own boss. और आपने अपना ही बॉस बनकर जिस तरह से जिंदगी के इस पड़ाव को बिना थके, बिना हारे, बिना रुके, बिना कंप्रोमाइज़ किए, पंक्चुअलिटी के साथ, पूरी डिटर्मिनेशन के साथ, और इस कहावत को चरितार्थ करते हुए कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, जिस तरह से आपने इस पड़ाव को कंप्लीट किया है, वह अपने आप में ही हर किसी के लिए एक एग्जाम्पल सेट करता है। आपने हमारे परिवार की हर एक सदस्य की जिस तरह से हेल्प की है, उसको एक्सप्लेन करना इस वीडियो के ज़रिए तो शायद नामुमकिन है। हमारी एक हर छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी कोई भी समस्या रही हो, आपकी एडवाइस के बिना वो हल हुई ही नहीं है। एक छोटा सा इंसिडेंट मैं आप शेयर करना चाहूँगी इस वीडियो के ज़रिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हैं जो ये बताते हैं कि आपने किस कदर हमारी हेल्प की है। सब तो मैं बयान नहीं कर सकती, तो एक छोटा सा इंसिडेंट है, वो शायद मैं इस वीडियो के ज़रिए शेयर करके कुछ बता सकती हूँ। कि एक बार एक नन्नू को, मेरे बेटे को, बाँह के ऊपर हल्के हल्के इंसेक्ट बाइट के निशान हो गए थे और वो बढ़ते ही जा रहे थे। लॉकडाउन था, डॉक्टर के लेके नहीं जा सकती थी, तो फर्स्ट एड के तौर पे ही मैंने उसको बोला कि एविल खा ले और शायद उससे ठीक हो जाए। बट नन्नू वो बोला कि पहले मौसा जी से पूछ लो, उसके बाद ही खाऊंगा, नहीं तो नहीं खाऊंगा। मैंने उसको बोला एविल है, ये तो एंटी एलर्जी है, इससे कुछ नहीं होगा। बट नो, पहले मौसा जी को फ़ोन करो, उसके बाद ही खाऊंगा। मौसा जी को फ़ोन हुआ, मौसा जी ने बोला कि हाँ खा लो, उसने खा ली और वो ठीक हो गया। तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हैं, जिस हर एक एग्जाम्पल में शायद ये रहा होगा कि मौसा जी को फ़ोन करके पूछ लो। तो हर चीज़ में यहाँ बयान नहीं कर सकती। आपने जो हमें एडवाइस दी, जो पथ प्रदर्शन किया हमारा, उसके लिए आपका बहुत 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 शुक्रिया। सो Time goes by so very fast. It is so hard to believe. It's a time for your retirement, time for feeling free. You have worked so very hard to make this dream come true, and no one deserves it any more than you. You have had some rough times, you have had some tough times. You made it through them all. You made the best of whole life bring, and today you are standing tall. I wish you days of happiness, not filled with any strife. I hope that your retirement years are the best year of your life. Very, very, very happy retirement days ahead. I love you. Hello Dilip, many congratulations. Wishing you all the best for the next phase of your life. पद्मा मैडम को भी ढेर सारी बधाई. Congratulations once again. So Dilip bhai, finally the day has come. A day of retirement. It's merely a day, it's merely a retirement from the work, nothing else. So wishing you a very happy retirement, full of fun, joy and happiness. Dilip bhai, you have worked very hard over the years in a very disciplined way. It is good to see you now getting some break for a short while. So have a restful of and retirement, but full of fun and activities. In spite of all your busyness, you always give us time
whenever it is needed. I'm sure in future also will be benefited with all your ideas and experience which you have earned over the years. Moreover, both the families now can spend more time together, much more time together. So, once again wishing you a very happy and healthy days ahead. God bless. Hi guys, I'm Mr. दिलीप खेमानी जी, आपकी LIC की रिटायरमेंट पे आपको हार्दिक शुभकामनाएं एवं आगे भी उम्मीद करता हूँ आप अपना जीवन खुशियों से भरेंगे और सबके लिए खुशियाँ लाएंगे। आपको और आपके परिवार को और मेरे परिवार की ओर से आपको शुभकामनाएं। भगवान चंचलानी। तो दिलीप भाई, पहले तो बहुत बहुत बधाई हो आपके रिटायरमेंट की। अब आप नई ज़िंदगी शुरू करने जा रहे हैं जो थोड़ी असाधारण होती है। उम्मीद है कि आपकी आगे का जीवन उत्साह भरा रहेगा और जीवन में सफलताएं पहले जैसे हासिल करिए वैसे भी सफल होते रहे। मेरे और मेरा पूरा परिवार हमेशा आपको याद करता रहेगा। आपने जो हमारे को साथ दिया है हमेशा ही साथ देते रहे, आगे भी देंगे। उम्मीद है आपका सुखी संसार रहेगा, सुखी जीवन रहेगा। इसी उम्मीद के साथ आपको एक बार फिर बधाइयाँ। हाय अंकु, विश यू वेरी हैप्पी रिटायरमेंट। आपने अपनी लाइफ के 38 इयर्स अपनी जॉब को, अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कंप्लीट करने में लगाए। अब हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप आफ्टर रिटायरमेंट भी अपनी लाइफ को ऐसे ही अच्छे से हेल्दीली स्पेंड करें। Many congratulations Anku for your retirement and wish you all the best for your new journey of life. Enjoy, stay healthy and safe and fit. All the best अंकु। All the best। और हम लास्ट में कहना चाहते हैं कि रखें अपना ख्याल LIC के साथ भी, LIC के बाद भी। Bye-bye। Take care। Hi Dilip uncle, congrats on over 3 decades of service. You are such a huge inspiration. You're like a brother to my dad, and you're honestly one of the coolest people I've ever met. And I'm so glad that, you know, you're doing well, that you're safe and you're healthy. And I appreciate everything, all the love and care that you've given me over the years. And I wish you a very happy retirement. All the best. And please enjoy this joyous time. Hi Anku! Happy retirement day. I hope you have a very happy life ahead and congratulations. Happy retirement day Anku! अब आपको सुबह जल्दी भी नहीं उठना पड़ेगा और पार्टी ड्यू रही। Enjoy! Bye! Hey Anku, congratulations! Finally you're getting retired. Now you can do whatever you want to do in your life and fulfill all your wishes. Enjoy your life and stay healthy. Hi! Hi Anku auntie. Happy retirement to both of you. आपको रिटायरमेंट की बहुत बहुत बधाइयाँ। और सबसे पहले तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आप दोनों बहुत अच्छे लग रहे हो। लेकिन अब आप ये बताओगे हम कैसे लग रहे हैं? क्योंकि ये भी तो एक रिटायरमेंट पार्टी है, ऑफ कोर्स इट्स अ वर्चुअल रिटायरमेंट पार्टी, पर आपको हमारे को जज यहीं तक करना है, यहाँ तक। हाँ, हमने यहीं तक ही कपड़े क्योंकि हमने नीचे पजामे पहन रखे शायद कुछ ना भी पहन रखा हो। नहीं, मैंने नाइट सूट पहन रखा। कीपिंग जोक्स असाइड, आपको रिटायरमेंट की बहुत बहुत बधाइयाँ। बिल्कुल। ऐसा लगता नहीं है बिल्कुल भी कि आपने 60 इयर्स कंप्लीट करे हैं। यू स्टिल लुक वेरी यंग एंड वाइब्रेंट एंड यू नो द मोस्ट हैपनिंग कपल ऑफ आवर फैमिली। और हम इस दिन का बहुत टाइम से वेट कर रहे थे बिकॉज हमने सोचा था कि पार्टी करेंगे, आपके रिटायरमेंट की मस्ती करेंगे एंड आई वाज ऑल प्लानिंग फॉर द ड्रेसेस एंड एवरीथिंग। बट अपू छुट्टू आएंगी। हाँ, अपू छुट्टू आएंगी। एक अच्छा सा फंक्शन, गेट टुगेदर पूरी फैमिली के साथ रियूनाइट होगी। जब ये आए थे कुछ महीने पहले तो हम लोग प्लान्स भी बना रहे थे अपन लोग, बट इस कोरोना ने हर चीज की वाट लगा दी। बट स्टिल not a thing to be sad about. Yeah, we can still party. Parties of course not with the occasion, it's about when you have all your people around, all your relatives around. तो जब सब साथ हो तब पार्टी है। तो जब मितवा और श्री शैन भी आएंगे
तो हम लोग पार्टी कर लेंगे। एग्जैक्टली। सो जस्ट थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं विद सम मेमोरीज ऑफ मी एंड यू। जब हम छोटे थे मुझे याद है कि हम सब बच्चे आपस में लड़ाई करते थे, लाइक मी, रिचा, गुल्ली एंड दीपा, कि कौन अंकु आंटी के घर पे स्टे करने जाएगा। और लाइक एवरी सैटरडेज हमारा वहीं सैटरडे संडे वहीं जाता था। मुझे याद है कि आंटी या तो मोस्टली छुट्टी ले लेती थी या तो हाफ डे ले लेती थी, और जब भी कुछ आती थी लंच पे तो हमारे लिए कुछ ना कुछ लेके आती थी और इतनी यम्मी यम्मी डिशेस बनाती थी। अप्पू चुटू तो थोड़ा कम खाती थी, बट या वी यूज्ड टू एंजॉय अ लॉट। हमें आप दोनों के साथ एंजॉय करना, आपके साथ स्टे करना बहुत अच्छा लगता था। मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि आंटी ऑफिस से रिटायरमेंट लेंगी या छुट्टियां लेने से रिटायरमेंट लेंगी। Because we have always seen her means being so passionate about the guests at their home. Means she's a lady जिनकी hospitality is like out of the world. Yeah, and she is up to date all the time. I remember whenever she used to come from the office, she used to change her sari and again she used to wear a sari. Like I've never seen my mom doing that. मेरी मम्मी तो फटाफट से कुछ हल्का फुल्का पहन लेती थी, she's always adorable, but she's always tip top, like perfect. बहुत कुछ ऐसा लगता है कि अब आपकी लाइफ में भी बहुत चेंजेस आएंगे, बट ऑल दोज चेंजेस आर पॉजिटिव। आई होप। मैंने कुछ लिखा भी है, बेसिकली आज ही लिखा था मुझे। ये मैं ऑन द बिहाफ ऑफ अंकु एक्सप्रेस करना चाहूँगा। मीन्स लाइन्स आज ही लिखी मैंने, बट आई वुड लव कि अगर अंकु इसे अपनी लाइन समझ के थोड़ा फील करें। तो आई एम जस्ट रिसाइटिंग, इट्स अ शॉर्ट, इट्स नॉट अ बिग वन, पर हाँ थोड़ी मेरी मेहनत है, तो आप थोड़ा सा अगर सुनेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। तो आई स्टार्ट विद दिस। स्टार्ट होता है कि मानो तो पूरी कहानी थी, न मानो तो केवल किस्सा था, होगी औरों के लिए ये नौकरी, मेरे लिए तो मेरी ज़िंदगी का हिस्सा था। रोज़ सुबह का अखबार पढ़ने के बाद वो नहाने की जल्दी, रोज़ सुबह का अखबार पढ़ने के बाद वो नहाने की जल्दी, वो कभी भर पेट नाश्ता खाकर निकलना तो कभी सिर्फ दूध और हल्दी, वो हर रोज़ सुबह दफ्तर पहुंचते ही सबसे पहले पंच करना। गजब सुकून था यारों, रोज़ाना घर आ मेम साहब के हाथों का गरम लंच करना। होता था कुछ काम तो कुछ मस्ती, कभी कुछ दुख सुख की बातों का अंबार होता था। दोस्त या सहकर्मी से बढ़कर था मेरे दफ्तर का हर एक सदस्य, मेरे लिए यह भी एक परिवार होता था। जानता हूं कि जल्दबाजी वाली जिंदगी के उन दिनों की ये यादें अब इत्मीनान से मुझे सताएंगी। जानता हूं कि जल्दबाजी वाली जिंदगी के उन दिनों की ये यादें अब इत्मीनान से मुझे सताएंगी, पर गुजरती उम्र के हसीन लम्हों की तरह अब ये भी मेरी आने वाली ज़िंदगी का एक हिस्सा बन जाएंगे। अब ये भी मेरी आने वाली ज़िंदगी का एक हिस्सा बन जाएंगे। सो विशिंग यू ऑल द बेस्ट अंकु and auntie. This is what I had written for you in a smaller duration of time, so I hope you liked it. Opposite. Thank you. And I also have made a painting for you, but it didn't go so well. But I'll send you. We will show you. We'll show you. उठो, हो गया। काफ़ी लंबा हो गया होगा वीडियो तो। चलो खैर, क्या था, हाँ, आपको भारतीय जीवन बीमा निगम से सेवानिवृत्त होने की हार्दिक शुभकामनाएं। Congratulations one more time. वो भी, congratulations. वो भी।